देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today let us learn Bhagavad Gita, chapter 3, Karma Yoga, shloka numbers 41 to 43. तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. Let us chant together. तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. Now you chant. तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. Listen to me. तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. Repeat after me. Shloka number 42. इंद्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः Let us chant together. इंद्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः. Now you chant. इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः. Listen to me. इंद्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः. Repeat after me. Shloka number 43, last shloka of the day. एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदं Let us chant together. एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना
जय शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। Now you chant. एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। Listen to me. एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. Listen to all the shlokas of the day. तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिष्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः. कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः. Arjuna pleads with Lord Krishna, if knowledge is superior to action, then why do you wish me to engage in this dreadful warfare? Tell me decisively the one thing which will lead me to bliss. Krishna said, all must work as work is inevitable because of the gunas. Theory is useless unless it is put into practice. So through work alone can one reach that state. Self-control assisted by action without desire is the right path. Action is important to sustain the body. Work done for sacrifice does not stand in the way of salvation. The whole creation rests on sacrifice. Right from the imperishable Brahman, performance of actions is obligatory on all. The whole cycle of creation turns continuously on the work of sacrifice. Perfection of life is reached through disinterested action. He who rejoices in the self from the self alone can abstain from work as he has no use for things done or not done. Arjuna, you must do your duty without attachment. So did Janaka and others worked, having an eye on the welfare of the world and attained perfection through work. Inaction would cause the ruin of the world. Whatever standard the wise man sets, the world pursues. Let the wise not unsettle the mind of ignorant attached to action. If I fail to engage myself in action unwearied, men around me would follow my path.
O Arjuna, fight dedicating all actions to me, fixing the thoughts on all-pervading universal self, which is actionless, renouncing any kind of desire or grief or any kind of mental fever. Men of faith find no bar for liberation, but the deluded ones are fated to be destroyed. All the impressions that touch our mind through senses may be classed as attractive or repulsive. One must resist likes and dislikes, love and hatred. Better one's own duty, even if they appear to be faulty, than the duty of another. One must do what the nature bids, even if it leads him to death. Arjuna asks Krishna, what is the cause of sin? Krishna replies, desire and anger are cause of all the sins. Know this to be your greatest enemy. These two passions obscure all knowledge as smoke hides fire, as dirt the mirror. It works like insatiable fire. They must be conquered. It has its seat in the senses, the mind and the intellect, and cloud one's knowledge. By self-control, they must be destroyed at its very birth. Thus knowing one's self is superior to everything else. अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मुझे निश्चय करके एकांतिक एक श्रेय साधन कहिए। श्री कृष्ण बोले, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का एक ही फल है। कर्म योग में क्रिया और सांख्य योग में विवेक की मुख्यता है। किसी भी निष्ठा में स्वरूप से कर्मों का त्याग आवश्यक नहीं है। क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग असंभव है। केवल ऊपर से इंद्रियों की क्रिया न करने वाले विषय चिंतक मनुष्य मिथ्याचारी है। फलेच्छा और आसक्ति त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करने वाला ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्मों को करना श्रेष्ठ है तथा कर्मों के बिना शरीर निर्वाह भी असंभव है। तू अनासक्त भाव से विहित कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्म पालन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होने के लिए कहा है। शरीर और अन्य सामग्री जो मिला हुआ है संसार की सेवा में समर्पित कर देना है। उसका उपभोग अकेले ही करने वाले चोर हैं, वह दंडनीय है। इसलिए कर्तव्य पालन रूप दायित्व को समझकर मन, वाणी और शरीर से सब जीवों का भरण पोषण करना चाहिए। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत आसक्ति से बंधता है। अनासक्ति भाव से परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और उपदेश के अनुसार लोग चलते हैं। संपूर्ण जगत का कर्ता, हर्ता और संचालक होते हुए भी मैं व्यस्त रहता हूँ। कर्म करने से लाभ और न करने से हानि होती है। जनकादि महापुरुष कर्मों से सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। ज्ञानी महापुरुष के लिए कोई कर्म शेष नहीं रहता, फिर भी लोक कल्याणार्थ स्वयं कर्तव्य कर्म करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। क्रिया केवल प्रकृति में ही होती है, चेतन में कभी नहीं। वास्तव में हम संसार से यानी पदार्थ और क्रिया अलग और
परमात्मा से एक है। ज्ञानी साधारण मनुष्यों को विचलित नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, तू आशा, ममता और संताप रहित सर्वथा त्याग करके युद्ध कर। इस सिद्धांत के अनुसरण करने वाले मुक्त हो जाता है और न करने वाले का पतन होता है। राग द्वेष आगंतुक दोष है, उनके वशीभूत होकर क्रिया नहीं करनी चाहिए। परधर्म की अपेक्षा स्वधर्म कल्याणकारक है एवं परधर्म भयावह है। काम रूप वैरी समस्त पापाचरण का मूल कारण है। मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। उस काम को अग्नि की भांति दुष्पूर और ज्ञान का आवरण करने वाला महान शत्रु है। इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय और अहम काम के वासस्थान है। हे अर्जुन, काम साधक को न तो ज्ञान प्राप्त करने देता है न विज्ञान। बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल।